Good day to all students. Today I am taking third chapter of class 11th biology, plant kingdom. This is the first session, part 1 of this chapter, and today we discuss the topic classification system. There are three types of the classification system: artificial, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. तो वन बाय वन सब हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पुखराज वैष्णव से रेगुलरली 11, 12, 9, 10 नीट एस्पायरेंट के लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं. अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. क्योंकि इस समय ये ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म बहुत ही आगे जा रहा है और इससे बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है. घर बैठे बच्चे आराम से पढ़ पा रहे हैं. सो फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशन भी मिल सके. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. सो फर्स्टली, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव to learn about the biodiversity, जो हम previously भी पढ़ चुके हैं. What is biodiversity? Distribution of the organism on a particular area on the earth is called biodiversity. There is a great diversity among the living organism found on the planet earth. They differ in their structure, habitat, mode of nutrition and physiology. ये organism किस में different होते हैं? स्ट्रक्चर में, हैबिट में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर डिफरेंट होते हैं. The biodiversity of Earth is enormous. Current estimates suggest that Earth may have anywhere from 10 to over 40 million species of organism. 10 to 40 million. और लेकिन उसमें से रिकॉर्डेड कितना है? Only 1.7. Only 1.7 million have actually been described. यानी जिनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो चुका है, जिनका नोमेनक्लेचर हो चुका है, वो केवल 1.7 मिलियन ही है. जबकि एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 10 से 40 मिलियन भी हो सकती है. ओके, इट इंक्लूडिंग 1.7 मिलियन के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? 7,50,000 इंसेक्ट. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 2,50,000 फ्लावरिंग प्लांट, 47,000 वर्टिब्रेट एनिमल. सो दिस इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट कंटेंट लेते हैं वो सिस्टमेटिक. व्हाट इज सिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑन in between the classified organism कह सकते हैं हम. The branch of biology dealing with identification, naming of classification and living organism is known as taxonomy. So we can say what is classification? Actually, grouping and subgrouping of organism is called classification, and study of classified organism is called taxonomy, and study of classified organism in a systematic manner with evolutionary relationship is called systematic. So there are three definitions. First is classification, सेकेंड इज टैक्सोनॉमी एंड थर्ड वन इज सिस्टमैटिक्स. तो सिस्टमैटिक्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड करते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन विद करेक्टराइजेशन, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को करेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद में क्लासीफाई करते हैं. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स. Taxonomy, Greek mean rendering of order. The word systematic means to put together. It was Carolus Linnaeus who used the word first in book Systema Naturae. Systematic may be defined as systematic placing of the organism into group taxa on the basis of certain relationship between the organism. It means we can say they are classified on the basis of the evolutionary relationship. With the evolutionary relationship, that is called systematics. Now, need for classification. Why there is a need of classification of the organism? It is not possible for anyone to study all the organism, but if they are grouped in some convenient way, the study would become easier, as the characters of a particular group or a family would apply to all the individual of the group. Classification allow us to understand diversity better. So ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है. What is the need of classification? क्लासिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? तो डेफिनेटली देयर इज ए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. वो क्या है? बेटर स्टडी है और स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप इन अ बेटर वे. तो ये कंडीशन है, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी था.
नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप देखते हैं द 3rd and 4th BC एरिस्टोटल एंड अदर कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहले एरिस्टोटल ने प्लांट्स एंड एनिमल में कैटेगराइज किया था। दे है इवन आइडेंटिफाई अ few thousand or more of living organism. Then Hippocrates, father of medicine, listed organism with medicinal value. Aristotle and his student Theophrastus made the first attempt of classify organism without stressing the medicinal value. They tried to classify the plant and animal on the basis of their form and habitat. So first attempt किसका था? Aristotle and Theophrastus. Now the classification system divided in 3 types. One is artificial, second is natural, and the third one is the phylogenetic. What about artificial system? Based on few morphological feature, listen carefully, few morphological feature, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल मॉर्फोलॉजिकल लिए गए थे। मॉर्फोलॉजिकल के साथ में रिप्रोडक्टिव फीचर्स कैरेक्टर्स भी आर्टिफिशियल में इक्वल वेटेज दिया गया था। लीनियस सिस्टम कहते हैं क्योंकि लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। Natural based on more feature including not only morphology, including anatomy, embryology, phytochemistry, cytology. So we can say not morphological character, other character also include, and with natural affinity. It means organism are resemble the same type of the characteristic with the same ancestral characteristic, that is called natural क्लासिफिकेशन सिस्टम। बैंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। नाउ फाइलोजेनेटिक इंक्लूड all branch morphological, anatomical, cytological, embryological, all branch, all character with evolution, with phylogeny. So what is the word meaning of phylogeny? Phylogeny means evolution. इसने evolution को include किया था, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? phylogenetic. इसमें एंडलर, प्रेंटर और हचिनसन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था। तो दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम। It was followed by Pliny the Elder, who introduced the first artificial system of classification in his book Historia Naturalis. So first artificial classification Pliny the Elder ने दिया था, उनकी बुक थी Historia Naturalis। और जॉन रे एंड इंग्लिश नेचुरलिटी इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज टर्म जॉन रे ने दी थी फर्स्ट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग। इट वाज कैरोलस लीनियस द स्वीडिश नेचुरलिस्ट। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कैरोलस लीनियस इज ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, स्वीडिश नेचुरलिस्ट, तो ये भी क्वेश्चन नीट में काफ़ी बार आए हुए हैं, तो आप ध्यान दें इन बातों पे। स्वीडिश नेचुरलिस्ट ऑफ 18th century, नाउ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। इनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, जिसके अंदर 5900 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया था। कितने? 5900। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इनकी बुक थी सिस्टीमा नेचुरी, उनके अंदर 4200 एनिमल को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल सिस्टम में वर्क किया था वो कैरोलस लीनियस ने वर्क किया था। उन्होंने क्या दिया देखिए कि किन किन करेक्टर को वेटेज दिया था। फर्स्ट, द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फ्यूअर और इवन अ सिंगल आर्बिट्री करेक्टर। एक या कुछ करेक्टर्स हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल आर्बिट्री करेक्टर जो आसानी से दिख सकते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रायोरी वेटिंग ऑफ टेक्सोनॉमिकल करेक्टर। टेक्सोनॉमिकल करेक्टर को इंक्लूड किया गया है। थर्ड, द करेक्टर डू नॉट शो एनी रिलेशनशिप। कोई उन करेक्टर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाइकोटोमस ब्रांचिंग। एग्जाम्पल, द एनिमल किंगडम इज डिवाइड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी डाइकोटोमस ब्रांचिंग दी गई है। एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विद आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी। दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट फाइंड एनी मिसिंग लिंक और कॉमन एंसेस्टर। इसमें किसी तरह का मिसिंग लिंक नहीं है और कॉमन एंसेस्टर इनको वेटेज नहीं दिया गया था। ये ध्यान दें इस बात पे। और 6th पॉइंट है, दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो थी नहीं, वो तो लास्ट में थर्ड वाले फाइलोजेनेटिक में आई थी। और इसमें एरिस्टोटल है, लीनियस है, इन लोगों ने वर्क किया था। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम की हिस्ट्री क्या है? इट इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्लांट्स आर
क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ फ्यू स्पेशली चूजन करेक्टर। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले प्लिनी द एल्डर ने तो दिया ही था, उसके बाद में थियोफ्रेस्टस ने भी प्लांट को हर्ब, सर्ब और ट्री में अंडर सब 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ध्यान दीजिए इस बात पे, 4 पार्ट में डिवाइड किया था, herb, serb, underserb and tree. He gave the name, the description to about 480 plant. How many plant? 480 plant in his book Historia Plantarum. इनकी बुक का नाम भी Historia Plantarum था, which is the oldest botanical work in existence. ये ध्यान रखें इस चीज का, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जॉन रे ने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में वर्क किया था। बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। डिवाइडेड प्लांट इनटू द इम्परफेक्टी मीन्स नॉन फ्लावरिंग एंड परफेक्टी मीन्स सीड प्लांट, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में कैरोलस लीनियस ने, जिनको फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहते हैं, पब्लिश आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन द फ्लोरल करेक्टर। इसीलिए ध्यान देना वाली बात है कि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और फ्लोरल करेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था, और लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो पूरा के पूरा फ्लोरल करेक्टर पे था। ये देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लीनियस वाज बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर। ही चीफली यूज द करेक्टर्स ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम को मेनली उन्होंने करेक्टर लिया था, एंड्रोशियम स्टेमन को करेक्टर लिया था। देयरफॉर हिज सिस्टम इज कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम। द सिस्टम इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ही प्रेजेंटेड हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 2 बुक्स, स्पीसीज प्लांटेरम एंड जेनेरा प्लांटेरम। 2 बुक में उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। Scheme of linear system, he formed 24 classes of plant on the basis of character of the stamen. He placed the many unrelated plant in a single group due to the common character of the stamen. तो ये मेन चीज है, स्टेमिन के बेस पे दिया था और टोटल 24 ग्रुप बनाए थे, 24 क्लासेस बनाए थे। ये 24 क्लासेस आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी हम बायोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ते हैं। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको एक जगह नहीं मिलेगी, मॉर्फोलॉजी में मिल जाएगी। तो आप उन पे भी थोड़ा ध्यान दें कि लीनियस ने 24 ग्रुप सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे, स्टेमिन के आधार पे डिवाइड किया था, और कौन कौन से थे। ही ऑल्सो यूज द कंडीशन पेरिगाइनस, ये वर्ड आपकी मॉर्फोलॉजी में है। हाइपोगाइनस, डाइनेमस फिलामेंट यूज फॉर द नॉट अदर अटैचमेंट प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, तो ये करेक्टर लिए थे, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस। उसके बाद में मोनेंड्रिया, अगर एक स्टेमन है किसी फ्लावर में तो क्या नाम दिया, मोनेंड्रिया। 2 स्टेमन है तो क्या नाम दिया, डाइएंड्रिया। 3 स्टेमन है तो ट्राइएंड्रिया। 4 है तो टेट्राएंड्रिया। 5 है तो पेंटाएंड्रिया। 6 है तो हेक्साएंड्रिया। 7 है तो हेप्टाएंड्रिया। 8 है तो ऑक्टाएंड्रिया। 9 है तो इनेंड्रिया। 10 है तो डेकाएंड्रिया। और उसके बाद में डोकेंड्रिया, फ्लावर विथ 12 स्टेमन। आइसोएंड्रिया, फ्लावर विथ 20 स्टेमन। हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन है ना। उसके अलावा पॉलीएंड्रिया, मोर देन 20 स्टेमन विद हाइपोगाइनस कंडीशन। तो इसे नंबर ऑफ स्टेमन के आधार पे ही इस तरीके से डिवाइड किया काफ़ी क्लासेस। ये आपको थोड़ा सा याद कर सकते हैं पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी में इतना नहीं है, लेकिन आपको ये टर्मिनोलॉजी आपको 11th के मॉर्फोलॉजी 5th चैप्टर के अंदर मिल जाती है, तो याद करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इनके अलावा भी कुछ ग्रुप थे, जैसे डायडेनिमिया, जिनका मतलब है स्टेनम डाइडेनिमस, स्टेमन ग्रुप बनाते हैं, जुड़कर आपस में अटैच होकर 2 ग्रुप बनाते हैं तो डाइडेनिमिया कहते हैं। अगर वो जुड़कर 4 ग्रुप बनाते हैं तो उसको टेट्रा डायनेमिया कहते हैं। मोनो एडेल्पस फ्यूज स्टेमन, सारे स्टेमन फ्यूज हो जाते हैं, है ना। डायडेनिमिया का मेन जो कंडीशन होती है वो 2+2 होती है। एक्चुअली उसमें जुड़कर 2 ग्रुप बनाने का मतलब है आउटर 2 आर लॉन्गर एंड इनर 2 आर शॉर्टर। इसके अंदर जो टेट्रा डायनेमिया के अंदर जो ग्रुप बनता है वो 4+2 का ग्रुप बनता है, तो ये ग्रुप बनता है अलग अलग। इसके अंदर मोनोडेल्पिया में सारे स्टेमन जुड़ के एक ही ग्रुप बना लेते हैं। डाइडेल्पिया में 2 ग्रुप बनता है। पॉलीडेल्पिया में मोर देन 2 ग्रुप बनते हैं, तो अलग अलग कंडीशन है। डाइडेनिमिया कंडीशन क्लियर हो गई कि 2 ग्रुप नहीं बने, लेकिन बाहर के 2 स्टेमन लंबे होते हैं और अंदर के 2 स्टेमन छोटे होते हैं। इसी तरीके से 4+2 में आउट ऑफ 4 आर लॉन्गर एंड 2 आर स्मॉलर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं जो आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं।
सिंजिनेसिया स्टेमेन सिंजिनेशियस होते हैं, आपस में पूरे जुड़ जाते हैं, दे आर अटैच्ड, दे आर फ्यूज बाय एंथर एज वेल एज बाय फिलामेंट, देन इट कॉल्ड सिंजिनेसिया. गाइनेंड्रिया, इफ दे आर स्टैमेन अटैच्ड विद द गाइनोसियम, देन इट कॉल्ड गाइनेंड्रिया. मोनोसिया, डायसिया, मोनोसिया मीन मोनोसियस प्लांट, डायसिया मीन डायोसियस प्लांट. पॉलीगेमिया मीन्स when a plant consisting all type of the flower, male flower is there, female flower is there, and the bisexual flower is there, pistillate, staminate and bisexual, all the type of the flower present in the single plant, then it called polygamous plant. So these are all 24 groups. Cryptogamia, non-flowering plant, and last one is cryptogamia. So इसमें यह ध्यान रखने की बात है 24 में से 23 ग्रुप फेनेरोगेमिया थे, यानी फ्लावरिंग प्लांट के थे. केवल एक ग्रुप कौन सा रखा गया? क्रिप्टोगेमिया. क्रिप्टोगेमिया का मतलब क्रिप्टोगेमस, और क्रिप्टोगेमस में किसको रखते हैं? एल्गी, उसके बाद में ब्रायोफाइट और फिर टेरिडोफाइट. तो ध्यान रखें क्रिप्टोगेमिया का केवल एक ही ग्रुप था, 23 ग्रुप जो थे वो फेनेरोगेमिया से बिलोंग थे. ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है. उसके बाद में ये डायग्राम देख रहे हैं जो वास्तव में कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था. ये 2 स्टेमेन है, ये 3 है, या ग्रुप बन रहा है. ये अलग अलग डायग्राम जो है, हम जो टेक्निकल टर्म यूज किया था उन्हीं के डायग्राम है जो एक्चुअली कैरोलस लीनियस ने दिए थे. मेरिट क्या लेते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की? लीनियस वाज फर्स्ट, वो इंट्रोड्यूस सम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट गेव सम बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, सो इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट एट दैट टाइम. It provided a reference work, he gave clear-cut concept of species. This system is still used today. The merit of this system is the quick and easy identification of plant based on one or few character. इसका मेन है कि वन और फ्यू करेक्टर पे इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. लेकिन डीमेरिट क्या है कि यही है कि बहुत कम करेक्टर यूज किए गए. डिफरेंट मेंबर ग्रुप आर यूजली आर नॉट सिमिलर इन द हेरिडिटी पैटर्न. ठीक है, कुछ मेंबर एक ही ग्रुप में रखे गए लेकिन वो सिमिलर नहीं है. स्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है. प्रोवाइडेड ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत कम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है. कैन नॉट ऐड न्यू वर्क ऐड नहीं कर सकते. डिफिकल्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज और जेनेरा. नॉट रिलेटेड फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए थे. तो ये इसके डीमेरिट्स आते हैं. उसके बाद में सेकंड सिस्टम ले लेते हैं. सेकंड सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का था. उसको 2D सिस्टम भी कहते हैं. ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है. 2D सिस्टम किसको कहते हैं? नेचुरल सिस्टम को. बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, ये वर्ड याद कर लीजिए. नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन हमेशा किसके बेस पे दिया जाता है? नेचुरल एफिनिटी के आधार पे दिया जाता है. अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल. यहाँ ध्यान दें इस शब्द को, इस वर्ड को. एक्सटर्नल की मीन्स मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और इंटरनल का मतलब एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल. ये सारे करेक्टर के आधार पे दिया गया. जैसे इसके एक साइंटिस्ट जॉर्ज बैंथम है, जेडी हुकर है, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. तो 1 by 1 ले लेते हैं. सबसे पहले इसके करेक्टर्स ले लेते हैं. फर्स्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोर देन फ्यूअर करेक्टर एंड मेनली टोटली ऑफ करेक्टर आर कंसिडर. इट मीन्स यानी एक करेक्टर नहीं है, एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा करेक्टर को इंक्लूड किया गया है. इट इज बेस्ड ऑन पोस्टीरियर वेटेज ऑफ द टेक्सोनॉमिकल करेक्टर. टेक्सोनॉमिकल करेक्टर से भी ज्यादा वेटेज इसमें दिया गया है. नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिक और हिडन करेक्टर विच शो रिलेशनशिप. ये केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर नहीं, हिडन ऐसे करेक्टर जिसके बेस पे आप डायग्नोस कर सकते हो, ऐसे करेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है. नेचुरल क्लासिफिकेशन इज एन अपवर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग और रिलेटेड स्पीसीज that resemble each other and forming a hierarchy of higher taxa by grouping similar taxa in the lower rank. तो grouping की गई है. This classification helps to find out the missing link and their common ancestor. इस नेचुरल क्लासिफिकेशन से आप मिसिंग लिंक को फाइंड कर सकते हो और कॉमन एंसिस्टर का पता लगा सकते हैं, जबकि आर्टिफिशियल से कॉमन एंसिस्टर का पता नहीं लगता था. नेचुरल क्लासिफिकेशन कैन स्टेबलाइज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द टेक्सा. नेचुरल क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप, टेक्सा के बीच में रिलेशनशिप बताता है. सो हेल्प टू फाइंड आउट द फाइलोजेनी अमॉन्ग डिफरेंट टेक्सा. हेल्प टू फाइंड आउट द फाइलोजेनी, लेकिन फाइलोजेनी को इनको इंक्लूड नहीं किया था. तो साइंटिस्ट ने सिम्पसन, मेयर ये इन्होंने 19th सेंचुरी में वर्क किया था. बाकी एक्चुअली जो है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन वो बैंथम एंड
हुकर क्लासिफिकेशन मेनली है, जो एनसीईआरटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन में बेंथम हुकर ने सबसे पहले प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया का मतलब है नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फेनेरोगेमिया का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि फेनेरोगेमिया को डाइकॉट के अंदर, फिर जिम्नोस्पर्मी के अंदर और मोनोकॉट में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा, जो इसकी बेंथम एंड हुकर की एक डीमेरिट थी, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में आप याद करना चाहें तो आप आगे याद कर सकते हैं, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी, ये डाइकॉट के 3 पार्ट थे, 3 सब क्लास थी और 3 सब क्लास के अंदर भी आप देखते हैं कि सीरीज दी हुई है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना याद कर सकते हैं। सीरीज भी दिए हुए हैं, किसमें कितने ऑर्डर है, कितने क्लास है, कम से कम सीरीज वर्ड जरूर याद करें। अगर आप कुछ डिटेल में करना चाहें तो ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप देखेंगे मोनोकोटिलिडन में भी सीरीज दी गई है, तो मोनोकोटिलिडन में सीरीज के नाम याद जरूर कर ले और नाम का मीनिंग जरूर याद कर ले अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको इतना बहुत है कि 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेमिया, फेनेरोगेमिया, और फेनेरोगेमिया को फिर से 3 ग्रुप में 3 क्लास में डिवाइड किया गया, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकॉट, और फिर डाइकॉट को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना लर्न कर सकते हैं, इसको नोट करें और इसको जरूर याद करें। फिर बेंथम और हुकर के बाद में इसकी मेरिट और डिमेरिट ले लेते हैं। मेरिट ये थी, इट इज यूज टू प्रैक्टिकल वैल्यू, एक तो प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए इसको यूज किया गया था। रेनेल्स को इन्होंने डाइकॉट का जो मोस्ट प्रिमिटिव माना था डाइकॉट के अंदर रेनेल्स को, और मोनोकॉट के अंदर ग्लूमेसी कंसीडर मोस्ट एडवांस, ग्लूमेसी को मोस्ट एडवांस माना था। तो ये इनके मेरिट्स थे। और इसी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का डीमेरिट क्या था कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जिम्नोस्पर्म को इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में प्लेस कर दिया था, जो इनकी बहुत ही बड़ी डीमेरिट थी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एक्चुअली पहले आता है एंजियोस्पर्म से। और क्लोजली रिलेटेड फैमिली सेपरेट प्लेस अंडर डिफरेंट कोहॉर्ट, क्लोजली रिलेटेड फैमिली को अलग अलग ऑर्डर में रखा गया। कोहॉर्ट का मतलब क्या है? कोहॉर्ट का मतलब है ऑर्डर, को ऑर्डर का दूसरा नाम कोहॉर्ट है। तो ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोहॉर्ट? सो क्लोजली रिलेटेड फैमिली सेपरेट प्लेस अंडर डिफरेंट कोहॉर्ट। उसके बाद में थोड़ा डिफरेंस ले लेते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। तो आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल में द सिस्टम यूटिलाइज 1 और 2 कैरेक्टर, 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। जबकि अब जब नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं, दिस सिस्टम एम्प्लॉय सेवरल नॉट 1 और 2, सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक तो ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड, मे यूज हैबिट एंड हैबिटेट एज क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाने के लिए आपने क्या करेक्टर का क्राइटेरिया लिया है? हैबिट है, हैबिटेट है। लेकिन इसके अंदर नेचुरल सिस्टम यूज द हैबिट हैबिटेट एज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम यूजेस हैबिट एंड हैबिटेट एज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ मे भी यूज है, यूज ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लेना ही है। होमोलॉजी इज नेवर स्टडी, होमोलॉजी को यहाँ पे स्टडी नहीं किया गया। इसके अंदर होमोलॉजी इन ऑल कैरेक्टर इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर सिस्टमिटी, सबको इंक्लूड किया गया। डिफरेंस नंबर 4, द सिस्टम गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचुरल रिलेशनशिप और फाइलोजेनी। इसमें नेचुरल रिलेशनशिप भी नहीं बता रहा है, फाइलोजेनी भी नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ नेचुरल रिलेशनशिप बताया जा रहा है। और नेचुरल रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनी को इंक्लूड तो नहीं किया, लेकिन उनके बीच में जो फाइलोजेनी रिलेशनशिप है उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट 5, इट ऑफन रिजल्ट इन प्लेसिंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप। यहाँ आर्टिफिशियल से अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखा गया था, लेकिन नेचुरल सिस्टम से देर इज लिटिल चांस ऑफ हो सकता है, लेकिन चांस जो है वो लिटिल होता है कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखा गया नेचुरल के अंदर। रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफन गेट सेपरेट, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को अलग अलग सेपरेट रखा गया। रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस इन द सेम ग्रुप, ये इसका नेचुरल का बेनिफिट है। तो इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल में देखा आपने डिफरेंसेस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी नोट करें और याद करें। फिर जो थर्ड नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसको 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टर्म, फाइलोजेनिक टर्म किसने दिया था? एक्चुअली
फाइलोजेनिक टर्म का मतलब इवोल्यूशन होता है, ये टर्म एक्चुअली किसने दिया था? लेमार्क ने, ये भी पूछा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी किसने दिया था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ये आप जरूर याद कर ले। टर्म किसने दिया था? लेमार्क ने, और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी किसने दिया था? हैकल ने। ये मेनली डेफिनेशन आती है फाइलोजेनेटिक की, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये मेन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एंगलर है, पेंटल है, हचिंसन है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसके पहले ये वर्ड ले लेते हैं क्लैडेस्टिक, क्लैड एंड क्लैडोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इवन ये टर्म आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी आते हैं और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्लैडेस्टिक ले लेते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू फाइलोजेनेटिक ट्री इज कॉल्ड क्लैडेस्टिक। मोस्ट कॉमन मेथड। So cladistic is what? Cladistic is most common. This is the method of incorporating information into phylogenetic tree is called cladistic. It means the character which include in the phylogenetic tree is called cladistic. Okay. Now the term cladistic comes from the word clade. The clade is a group. What is the word meaning of clade? The clade is a group of organisms that include an ancestor species and all of its descendants. Diagram showing evolutionary relationship within one or more clade is called cladogram. Within one or more clade, जैसे हम बात करें यहाँ की, तो ये एक कॉमन एंसिस्टर है स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 का। ये एक कॉमन एंसिस्टर है स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 का। दिस इज अ वन क्लैड। नाउ दिस इज अ सेकेंड क्लैड। ये कॉमन एंसिस्टर है स्पीसीज 2 और स्पीसीज 3 का, तो ये कॉमन एंसिस्टर सेकेंड क्लैड हो गया। और डिफरेंट और मोर देन 2 और मोर देन 1 क्लैड इंक्लूडिंग द ब्रांचिंग ओरिएंटेशन दैट कॉल्ड क्लैडोग्राम। यानी क्लैडोग्राम में एक या एक से ज़्यादा क्लैड कंटेनिंग ब्रांचिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो शो की जाती है उसको क्लैडोग्राम कहते हैं। उनके अंदर जो करेक्टर से इंक्लूड, करेक्टर जिस करेक्टर के आधार पे किया जाता है, दैट करेक्टर इज कॉल्ड क्लैडेस्टिक। ओके, सो क्लैडेस्टिक, क्लैड एंड क्लैडोग्राम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर कौन से करेक्टर इंक्लूड किए जाते हैं, देन आंसर इज क्लैडेस्टिक। एंड कॉमन एंसिस्टर को क्या वर्ड दिया जाता है? क्लैड। ओके, और इनकी ब्रांचिंग ओरिएंटेशन को क्या कहते हैं? क्लैडोग्राम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ इसमें फाइलोजेनेटिक में कुछ ले लेते हैं। क्लैडोग्राम के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैमल, टर्टल, लिजार्ड एंड स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड, इन सब का जो कॉमन एंसिस्टर बताया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मैमल और टर्टल का कॉमन एंसिस्टर किसको बताया गया है? रेप्टाइल को। ये 1 क्लेड हो गया है ना। मैमल और टर्टल का कॉमन एंसिस्टर किसको बताया? रेप्टाइल को। ये 12th के अंदर। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आए, आप ये एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 12th क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर आप नोट करें इस चीज को। आप देखेंगे 12th क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर ये देर का है। 12th क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर में सारा बायोलॉजी एक इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट है, कहीं से भी वो ऐड हो सकता है, इसीलिए इसको पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। 12th के इवोल्यूशन चैप्टर में ये दे रखा है कि मैमल्स और टर्टल का कॉमन एंसेस्टर कौन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, तो बताइए कौन सा है? रेप्टाइल्स। और लिजार्ड और स्नेक और क्रोकोडाइल, इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके कॉमन एंसेस्टर जो आ रहे हैं वो यहाँ से अगर लें तो बर्ड है, और बर्ड इनका एक क्लेड हो गया, कॉमन एंसिस्टर हो गया। तो अब आप कहोगे सर कि सॉरी, मतलब ये रेप्टाइल्स जो है वो सबका कॉमन एंसिस्टर हो गया, बर्ड की बात नहीं करेंगे, बर्ड तो खुद एक हाई कैटेगरी में आ जाएगा। तो रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में टर्टल हो गया, लिजार्ड एंड स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल, ये तो रेप्टाइल्स है ही, सारे रेप्टाइल्स हैं। लेकिन फिर रेप्टाइल से बर्ड भी इवॉल्व हो रहा है, रेप्टाइल से मैमल भी इवॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से कॉमन एंसेस्टर कौन हुआ? कॉमन एंसेस्टर आपका रेप्टाइल्स हुआ। ओके, चलो अब यहाँ देख लेते हैं। अगर लीनियर सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो लीनियर तो एक या फ्यू करेक्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो अगर रेप्टिलिया की बात करें तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, स्केली होते हैं, दे आर ओविपेरस, डायनासोर है ना, लिजार्ड,
है ना, इनको इंक्लूड किया गया था। बर्ड्स के अंदर वार्म ब्लडेड होते हैं, फीदर्स होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। मैमल्स में वार्म ब्लडेड होते हैं, दे आर विविपेरस। तो अलग अलग रेप्टिलिया, बर्ड एंड मैमल, दे आर 3 डिफरेंट क्लास, बट अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक sauropsids is a clade, common ancestor. Clade word means common ancestor for dinosaur and bird, for reptiles and bird. आपकी 12th क्लास की बुक लिखिए और 12th क्लास की बुक के अंदर इवोल्यूशन का चैप्टर आप ओपन कीजिए, उसके अंदर ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, डायग्राम में दे रखा है, और उस डायग्राम में नोट करोगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, नीट के अंदर भी पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि sauropsid इज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ डायनासोर एंड बर्ड। इसी तरीके से साइनेप्सिड इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ अगेन रेप्टाइल्स एंड मैमल, रेप्टाइल्स एंड मैमल। तो इस तरीके से ये क्लेड का मीनिंग होता है। तो आई थिंक अब आपको क्लेड का मीनिंग क्लियर हो गया और 12th के अंदर भी आपको वो टॉपिक इजीली से समझ में आ जाएगा। चलो अब ले लेते हैं आगे। इक्लर सबसे पहले फाइलोजेनेटिक में इक्लर ने अपना पार्ट दिया था। तो इक्लर मॉडिफाइड, इक्लर ने बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन को केवल मॉडिफाइड कर दिया था। बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की कमी क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी, कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा था। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को उठाकर डाइकोट से पहले रख दिया, कमी को पूरा कर दिया, कमी को हटा दिया। तो वो इक्लर ने किया था। उसके बाद में एंगलर एंड प्रिंटल ने, जिनकी बुक थी डाई नेचुरल लाइकन पफ्लिंजियन फैमिली, ये बुक का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये बुक का नाम था। और उन्होंने क्या किया एंगलर एंड प्रिंटल ने, कि सबसे पहले एम्ब्रियोफाइटा मीन्स साइफेनोगैमस वर्ड किस लिए यूज किया जाता है आपको ध्यान देना चाहिए। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए यूज किया जाता है, जिनके अंदर पोलन ट्यूब बनती है, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर भी साइफेनोगैमस, तो साइफेनोगैमस को उन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया सबसे पहले। एंजियोस्पर्म को फिर मोनोकोट और डाइकोट के अंदर डिवाइड किया। मोनोकोट को पहले रखा, डाइकोट को बाद में रखा, और डाइकोट को फिर अक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। अक्लेमाइडी का मतलब जिनके अंदर पेटल्स नहीं होते हैं, अपिटेली, यानी पेटल्स जो है अपिटेली। और अपिटेली का मीनिंग यहाँ पे जो हम वर्ड ले लेते हैं कि पेटल्स इज देयर बट दे आर फ्री, पेटल्स इज देयर बट दे आर फ्री, या पेटल्स दोनों नहीं होते, दोनों बात हो सकती है। या तो कोरोला होंगे बट दे आर फ्री, या कोरोला होंगे ही नहीं, देयर इज नो पेटल्स, ओके। और मेटापिटेली के अंदर पेटल्स आर फ्यूज, सिम्पिटेली इज देयर, कोरोला होंगे और दे आर फ्यूज, दे आर कॉल्ड गैमोपिटेलस कंडीशन, ठीक है। और पेरियंट कंडीशन भी ले सकते हैं, तो पेरियंट सिंगल और डबल और पेरियंट इन 2 वॉल, ये कैरेक्टरिस्टिक अपन ले सकते हैं। तो ये इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि एंगलर और प्रिंटल ने क्लासिफिकेशन किस तरीके से दिया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसके दिया, तो एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगैमस को दिया था। और क्लेमाइडी और क्लेमाइडी का, मेटाक्लेमाइडी का वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है, तो अक्लेमाइडी का वर्ड मीनिंग अपिटेली है और मेटाक्लेमाइडी का वर्ड मीनिंग जो है वो सिम्पिटेली है, ये ध्यान रखें। अब एंगलर प्रिंटल की मेरिट ले लेते हैं। मेरिट ये थी, उनके प्लस पॉइंट ये था कि फैमिलीज अरेंज अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर, फैमिलीज को उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर के अकॉर्डिंगली अरेंज किया था। लेकिन उनकी डीमेरिट्स ये थी, मोनोकोट कंसिडर प्रीमिटिव। देखो आप यहाँ खुद देखिए, उन्होंने मोनोकोट को पहले लिया फिर डाइकोट लिया, नहीं, जबकि आपको पता है कि मोनोकोट तो एडवांस होते हैं, डाइकोट से भी एडवांस होते हैं, तो ये इनकी कमी रह गई। दिस इज द डीमेरिट ऑफ द एंगलर एंड प्रिंटल। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट ले लेते हैं, जॉन हचिनसन की बुक थी फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एडवांस ऑफ प्रीमिटिव कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया। इन्होंने ट्री एंड सर्ब को हर्ब से प्रीमिटिव माना, यानी कि एडवांस किसको माना, हर्ब को। एडवांस किसको माना, हर्ब को। इसी तरीके से डाइकोट और मोनोकोट में से एडवांस किसको माना, मोनोकोट को, और डाइकोट को प्रीमिटिव। पॉलीपिटेली इज प्रीमिटिव देन गैमोपिटेली, पॉलीपिटेली इज प्रीमिटिव देन गैमोपिटेली। एक्टिनोमॉर्फिक इज प्रीमिटिव देन जाइगोमॉर्फिक। सॉलिटरी सिंगल फ्लावर करेक्टर इज द प्रीमिटिव देन इन्फ्लोरोसेंस, यानी कि एडवांस करेक्टर कौन कौन से हो गए। अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, इस बार इवन आपकी 12th बोर्ड 11th क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है और नीट में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इनका ध्यान रखें आप चीज कि कौन सा एडवांस करेक्टर है, पूछा जाता है। जैसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए आपसे, विच फाइंड ऑड वन with respect to advanced character, A monochord, B gammopiteli,
सी इन्फ्लोरोसेंस एंड डी एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक वर्ड आएगा क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, वो एडवांस कैरेक्टर नहीं है। ओके, मेरिट क्या थी जॉन हचिंसन ने एक्चुअली क्या किया था, उन्होंने केवल एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले डाइकॉट और मोनोकॉट। और डाइकॉट को देख रहे हैं आप लिग्नोसी और हर्बेसी। लिग्नोसी मतलब हार्डवुड वुडी प्लांट को कहते हैं और हर्बेसी का मतलब हर्बेशियस प्लांट होता है, उसमें डिवाइड किया। और मोनोकॉटिलिडन को कैल्सीफेरी, इसके अलावा दूसरा जो है वो एक्चुअली डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड कोरोला ऑलमोस्ट सिमिलर। इसमें डिस्टिंक्ट अलग अलग होते हैं कैलिक्स कोरोला, है ना, इसके अंदर सिमिलर होते हैं। ग्लूमी फेरी का मतलब यहाँ के अंदर पेरियंट होगा। कैल्सीफेरी कोरोली फेरी होना चाहिए, ये सेकेंड वर्ड कोरोली फेरी होना चाहिए क्योंकि कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और थर्ड ग्लूमी फ्लोरी के अंदर हम बात करते हैं कि देयर इज अ पेरियंट, कैलिक्स एंड कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं होते। तो ये हचिंसन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसका मेरिट ये है मोनोकॉट हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम डाइकॉट। सबसे पहले इन्होंने मोनोकॉट को एडवांस रखा था सबसे। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड फैमिली आर मोस्टली प्रिसाइज, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सब फाइलम ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स। तो अकॉर्डिंग टू हिम द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड फैमिली आर मोस्टली प्रिसाइज, उनको प्रिसाइज में रखा गया था। डीमेरिट इनकी ये थी टू मच एम्फेसिस इज लेड ऑन द हैबिट एंड हैबिटेट, द क्रिएशन ऑफ लिग्नोसी एंड हर्बेसी इज थॉट टू बी द फैक्ट रिफ्लेक्टिंग द एरिस्टोटेलियन व्यू। इन्होंने क्या किया, हैबिट और हैबिटेट को ज़्यादा वेटेज दिया, तो डाइकॉट को लिग्नोसी और हर्बेसी के अंदर इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था। तो वो एक एरिस्टोटल का व्यू आ गया इनके अंदर, उनके अंदर फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आया, तो ये इनका डीमेरिट था। उसके अलावा एक तख्ताजन भी है, तख्ताजन ने फाइलोजेनी को क्लासिफिकेशन की सॉल्व कहा है। इट मीन्स फाइलोजेनी इज सॉल्व ऑफ द व्हाट क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम की आत्मा को आत्मा के रूप में कंसीडर किया है किसने, तख्ताजन ने। ओके, जैसे इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से बोन्स निकाल दी जाए, बोन विदाउट फ्लैश बोन निकाल दी जाए तो वो उस ऑर्गेनिज्म का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से अगर किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में से फाइलोजेनी को निकाल दिया जाए तो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये वर्डिंग किसके थे, तख्ताजन के थे। और तख्ताजन ने मैग्नोलियोफाइटा यानी कि एंजियोस्पर्म, मैग्नोलियोफाइटा किसका वर्ड है, एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा का मतलब होता है डाइकॉट और लिलियोप्सिडा का मतलब होता है मोनोकॉट। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमने थोड़ा डिटेल भी लिया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिटेल नहीं लिया है। आजकल थोड़ा बहुत डिटेल तो आपको आना चाहिए क्योंकि वो वर्ड कहीं ना कहीं आपके बायोलॉजी से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से इस तरह कंप्लीट तैयारी हो जाती है आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम की। बहुत ही बढ़िया लेक्चर गया है, आपने बहुत नई नई चीज़ें इसमें सीखी हैं। आप उसको वापस रिवाइज करें, वीडियो लेक्चर को बार बार देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ कंटेंट और ले लेते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसको फिनेटिक भी कहते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का दूसरा नाम फिनेटिक भी है, एल्डोसोनियन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इसको फिनेटिक क्यों कहते हैं, कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑल्सो इंक्लूड द इक्वल वेटेज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड अनदर कैरेक्टर। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और अनदर कैरेक्टर को मतलब हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देने वाला कौन था, मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज देने वाला कौन था। तो आपका आंसर आना चाहिए, एक तो आर्टिफिशियल सिस्टम था और एक आपका ये जो आ रहा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें भी इक्वल वेटेज था। डाटा प्रोसेस आफ्टर असाइनिंग नंबर एंड कोड, कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह दी गई थी, न्यूमेरिकल मीन मोड मीडियन का यूज किया था, इसलिए इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम फिनेटिक भी है, ये ध्यान रखें। तो फिनेटिक किसका नाम है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का। क्रेडेस्टिक कैरेक्टर इन्वॉल्व इन द फाइलोजेनेटिक। ओके, एडवांटेज, ईच कैरेक्टर गेट्स इक्वल इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखें, इक्वल इंपॉर्टेंस आर्टिफिशियल में भी दिया गया था और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में भी दिया गया था। दूसरी डेफिनेशन जो मेन इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वर्ड याद रखें, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन गिव इंपॉर्टेंस टू क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ध्यान दें, आप
साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज़ें, क्रोमोसोम के नंबर की बात करें, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, क्रोमोसोम की बिहेवियर की बात करें, लेकिन क्रोमोसोम किस केमिकल से बना हुआ, अगर इसकी बात करोगे तो कीमोटैक्सोनॉमी हो जाएगा। जब हम किसी केमिकल की बात करते हैं तो वो कीमोटैक्सोनॉमी हो जाता है। इसमें आप सिस्टोलिथ ले सकते हैं। सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्रोमोसोम जीन और नाइट्रोजन बेस का बना होता है, तो वो कीमोटैक्सोनॉमी स्टडी हो गई। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो तो वो साइटोटैक्सोनॉमी की बात होगी, बिकॉज यू आर स्टडीड अबाउट द कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट्स इट कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। एंड जब आप साइटोप्लाज्म के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप केमिकल की पढ़ाई कर रहे हो, यानी सिस्टोलिथ के बारे में पढ़ रहे हो कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या क्रोमोसोम जो है वो जीन और नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, देन इट कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। सो आई थिंक आपको साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी वर्ड क्लियर हो गए होंगे। सो बहुत ही बढ़िया लेक्चर गया है आज का, आपको काफ़ी नया चीज़ सीखने को मिला है। आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। किसी तरह की प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भेज सकते हैं मुझे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स जो नीट की तैयारी करें उनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बोले ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशन मिले। सो गुड डे टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर फ्यूचर।